Good morning, my dear students. Today we will be doing chapter 4 of social studies. So open your social studies textbook, page number 19. Chapter 4, Our Armed Forces. Hope you all have opened the page number 19. Today we will study about our Indian Army. Our Indian Army has played a major role in country's history. They have always protected the country and shown their bravery. Children, every country has army, right? Every country has their own army. Army protects us and defend us from the danger and attacks from enemies, right, from the other countries. So India's army has also played major role in country's history. So in this chapter we are going to study about army, why army is needed, what is the role of army, what are the different types of army, different types of defense forces and their working, how someone can join army, when can someone join army, the training of army and the pride of nation. These all points we are going to cover one by one. I want you to pay attention. You have to be attentive. So let's get started. So in the first paragraph, we will study about basic introduction of army. A army, the country's armed forces protect it against attack from outside. So as I have told you that army protects us from the attack from outside. It protects us against the attack from outside. To be able to do this, ठीक है, इतना कैपेबल बनने के लिए कि वो हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट कर सके. सो टू बी एबल टू डू दिस दे हैव टू बी वेल ट्रेन्ड, डिसिप्लिन्ड एंड वेल आर्म्ड. So they have to get proper training, they have to be disciplined and organized, and they have to be well armed. Well armed यानी उनके पास proper modern equipments, technology और weapons होने चाहिए. Weapons means arms. उनके पास ऐसे हथियार होने चाहिए जिससे वो भी हमें प्रोटेक्ट कर सके. तो इंडियन आर्मी जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी आर्मी है. ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इज नोन फॉर दैट डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इंडियन आर्मी है वो दुनिया में से सब एक बड़ी आर्मी है. ठीक है, तो काफ़ी है. इट इज़ नॉट दैट इंडिया इज़ द ओनली वन, बट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट disciplined and organized army. The four armed forces of India are Army, Navy, Air Force and Coast Guard. ठीक है, अपनी जो आर्मी है, अपना आर्म्ड फोर्सेस है, तो वो आर्म्ड फोर्सेस 4 कैटेगरीज में है. वो कौन कौन सी कैटेगरीज है? आर्मी, नेवी, एयर फोर्स एंड कोस्ट गार्ड. Of this, Coast Guard is the youngest. ठीक है, यानी जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स है ना, वो पहले ही फॉर्म हो चुकी थी, बट कोस्ट गार्ड है जो लेटेस्टली फॉर्म किया हुआ है. ठीक है, तो वो नई फॉर्म की हुई है. वो कब फॉर्म की हुई है, कब उसको सेटअप किया हुआ है? 1978 में. सो द 3 armies are old and the Coast Guard is the youngest, or we can say latest, set up in 1978. So here activity is given.
The pictures show the marching groups from the four armed forces. Can you say which is which? तो यहाँ पर ये मार्च करते हुए 4 आर्मी के सोल्जर्स आपको दिख रहे हैं. ओके, 4 different categories of armies march past. Photograph is shown. Now you have to categorize which is which. आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो फोटोग्राफ है वो कौन सी आर्मी का है. ठीक है, इसमें मैं आपको थोड़ा हेल्प करती हूँ. चैप्टर जब समझाऊंगी तब आपको मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी. उसके हिसाब से आपको जजमेंट करना है कि कौन सी आर्मी है. ठीक है, चारों को कैटेगराइज क्लासीफाई करना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सो व्हाई इज़ आर्मी नीडेड? आर्मी को क्यों बनाया जाता है, क्यों मेंटेन करता है. ओके, व्हाई आर्मी इज़ नीडेड, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज़. ठीक है, आर्मी प्रोटेक्ट करती है कंट्री को. ठीक है, सेफ्टी, हम सेफ है क्योंकि आर्मी ऑलवेज प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, सो आर्मी प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम एनिमीज़ एंड टू बी कैपेबल टू डू सो they have to be well trained, disciplined and well armed. They must have the modern techniques and arms. उनके पास प्रॉपर हथियार होने चाहिए, वो प्रॉपर डिसिप्लिन्ड और ट्रेंड होनी चाहिए. उनके पास गन्स, मिसाइल्स सब कुछ होनी चाहिए. राइट, सो ये सब आर्मी के पास होना चाहिए. उनके पास वेल इक्विप्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल्स होने चाहिए. ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए. तो वो सिर्फ हमारा वॉर में ही एक्टिव नहीं होते. सिर्फ वो हमें एनिमीज से ही नहीं बचाते, प्रोटेक्ट नहीं करते, पर और भी काफ़ी काम वो करते हैं. ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, बट उसके अलावा भी वो बहुत हमें हेल्पफुल रहते हैं. They do a lot of work during peace time also. ठीक है, जब कंट्री में पीसफुल सिचुएशन होती है, पीसफुल यानी कि कोई वॉर, कोई एनिमी अटैक नहीं होता है, तब भी वो हमारी मदद करते हैं. They also play important role during the need of the country, like natural calamities like flood, earthquake, etc. तो जब नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल कैलेमिटी होती है, ठीक है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है, तो उस आपदा में भी वो हमारी मदद करते हैं. ठीक है, वो रेस्क्यू टीम्स आ जाती है. राइट, और वो रेस्क्यू करने में मदद करते हैं. तो 4 प्रकार की आर्मी है, 4 टाइप्स ऑफ आर्मी. द फर्स्ट वन इज़ इन्फेंट्री आर्मी, जो कि लैंड पे होता है, जिसका वर्क लैंड पे होता है. दे प्रोटेक्ट अस ऑन लैंड. नेवी विच प्रोटेक्ट्स अस थ्रू द सी, ओके, इन द वाटर, ऑन द वाटर लेवल. एयरफोर्स है जो हमें एयर लेवल पे प्रोटेक्ट करती है. और कोस्ट गार्ड जो बॉर्डर्स पे, ठीक है, सी कोस्ट के बॉर्डर्स पे मदद करती है. तो ये सारी टाइप्स है. So other than protecting the country, the armed forces help in maintaining the law and order within the country when police is unable to do so. ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था IPS पुलिस फोर्स के बारे में. राइट, तो आप कहोगे कि मैम आपने बोला था कि पुलिस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है. पुलिस करती है, बट जब ऐसी एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत होती है या जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पुलिस कंट्रोल करने के लिए पुलिस को भी हेल्प चाहिए होती है. ठीक है, व्हेन पुलिस इज़ अनेबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, एट दैट टाइम आर्मी ऑल्सो कम्स टू द हेल्प, ओके, फॉर द हेल्प. सो आर्मी ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर in the country when the police is unable to
do. Now, which are the situations in which we need an extra help? ओके, कौन सी सिचुएशन में हमें एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, पुलिस को, हमको, गवर्नमेंट को? फॉर एग्जाम्पल, वेर देर इज़ अ वायलेंस डिस्टर्बेंस इन अ टाउन और सिटी. जब वायलेंट डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, जब कोई टेररिस्ट अटैक्स होता है या तो कुछ ऐसे मॉब्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे दंगे फसाद हो जाते हैं, तो फिर उस टाइम पे भी आर्मी की हेल्प चाहिए रहती है. ठीक है, या तो कोई ऐसी सिचुएशन जैसे कि नेचुरल कैलामिटी है या अभी कोविड है, ठीक है, तो एट दैट टाइम्स ऑल्सो, इन द टफ टाइम ऑल्सो, आर्मी कम्स टू हेल्प. द आर्म्ड फोर्सेस प्ले अ बिग रोल इन फाइटिंग टेररिस्ट टू. तो जो आतंकवादी होते हैं ना, ओके, एक जो एनिमीज़ होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, जो सब कुछ रूइन करना चाहते हैं, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, कोलैप्स करना चाहते हैं, ठीक है, तो वैसे टेररिस्ट होते हैं ना, आतंकवादी, वो टेररिस्ट के साथ भी फाइट करने में आर्मी है वो कैपेबल होती है, फाइट करती है. दे हेल्प इन रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटी. सो जब नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड आया, ठीक है, बाढ़ आई, या तो अर्थक्वेक हुआ, या तो कोई ऐसी सिचुएशन जिससे हम बोल सकते हैं कि कोविड. तो जब अभी नहीं पर कुछ महीने पहले जब सिचुएशन ऐसी थी कि सबको घर पे रहना था, प्रॉपरली घर पे रहना था, ठीक है, किसी को बाहर निकलना अलाउड नहीं था, तो वो टाइम पे भी हमने देखा था कि आर्मी जो ऐसे जो कोई सिटीज़ थी वहाँ पर हेल्प के लिए पहुँची थी, ठीक है, जहाँ पर आर्मी की रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर आर्मी हेल्प करने गए थे, राइट. तो फिर ऐसी सिटीज़ जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हो गए थे और पुलिस फोर्स कम पड़ रही थी कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पर आर्मी भी गई थी, राइट. सो ऐसी कोई भी सिचुएशन जब कंट्री में होती है, ठीक है, तभी भी आर्मी हेल्प के लिए बुलाए जाते हैं आर्मी वालों को, और आर्मी हेल्प करती है. दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन पीस कीपिंग एक्टिविटीज़ अराउंड द वर्ल्ड. तो यूएन है, ठीक है, यूएन आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में, जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे कंट्री को यूनाइटेड रखती है, सारे कंट्री को के बीच में हार्मनी मेंटेन करती है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जब कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही होती है तो पीस कीपिंग की एक्टिविटीज़ में भी ये जो आर्मी है वो पार्टिसिपेट करती है. टू डू देयर जॉब्स वेल, ओके, टू डू ऑल द थिंग्स प्रॉपरली, टू फाइट प्रॉपरली, टू बी केपेबल, आवर आर्म्ड फोर्सेस नीड टू बी वेल आर्म्ड. उनके पास प्रॉपर मॉडर्न इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर वेपन्स होने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर आर्म्स होने चाहिए, ठीक है, हथियार तो होने चाहिए ना. सम ऑफ द वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर आवर फोर्सेस आर मेड इन इंडिया एंड सम आर इम्पोर्टेड. तो कुछ है वो इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन होता है और उसको आर्मी को सप्लाई होता है, और कुछ जो है वो हमें बाहर से मतलब आउट ऑफ इंडिया, हाँ, तो कुछ है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. इंपोर्ट करना यानी टू बाय और टू परचेज फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री. तो वी हैव टू परचेज फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्री. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ आर्म्स. तो वी आर अ कंट्री विच इम्पोर्ट्स द आर्म्स. जो हथियार है, जो इक्विपमेंट्स है, वो हम बाहर से भी इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है. वी परचेज फ्रॉम अदर countries as well. The next subtopic is the four armed forces, यानी कि types. The army is the largest of our armed forces. It operates on land. तो जो आर्मी है, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस है, वो 4 टाइप्स के हैं, राइट. पर जो आर्मी जो लैंड पे काम करती है, ठीक है, जो लैंड पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इट ऑपरेट्स ऑन लैंड एंड प्रोटेक्ट्स आवर लॉन्ग बॉर्डर्स, ठीक है. तो वैसी आर्मी जो लैंड बेस्ड है,
ठीक है, इन्फेंट्री। तो वैसी आर्मी सबसे ज़्यादा उसमें सोल्जर्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर मोर इन द आर्मी। ओके, सो आर्मी है वो हमें लैंड, मोड ऑफ लैंड में प्रोटेक्ट करती है। ओके, सो आर्मी प्रोटेक्ट्स आवर कंट्रीज लैंड बॉर्डर्स। Army is well trained to operate in all kinds of geographical and climatic conditions. So आर्मी है उन्हें बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग मिली होती है कि वो कोई भी तरह के रीजन में रह सके, कोई भी टाइप के रीजन में अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे वो रह सके, उनके क्लाइमेटिक कंडीशन को एडजस्ट करके वहाँ पर रह सके। ओके, सो it is well trained to operate in all kind of geographical land and climatic condition. तो डेजर्ट एरिया जहाँ पर जो ड्राई एरिया होता है, ठीक है, विच हैज़ लेस ऑफ रेनफॉल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वहाँ वैसी कंडीशन से लेकर एकदम आइस कवर्ड, स्नो कवर्ड रीजन्स तक में वो लोग होते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं। सो फ्रॉम डेजर्ट टू जंगल्स एंड टू फ्रीजिंग माउंटेन, ये सारे में क्लाइमेट कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन भी डिफरेंट है। तो कोई भी डिफरेंट लोकेशन या क्लाइमेटिक कंडीशन में भी वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। आप देख सकते हो इमेज में कि कुछ फॉरेस्ट रीजन का कुछ फोटोग्राफ है जहाँ पर जो सोल्जर है वो छुपे हुए हैं और छुप कर वो निशाना लगा रहे हैं। ओके, इट हैज़ टैंक, लार्ज गन्स, रॉकेट्स एंड मिसाइल्स टू अटैक द एनिमी फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो उनके पास है ना वेपन्स होते हैं, ठीक है, और उनके पास मिसाइल होती है। मिसाइल क्या होता है, एक छोटा सा स्मार्ट रॉकेट जैसा वेपन होता है जो जहाँ पर हम उसे टारगेट करें वहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो उनके पास मिसाइल होता है, रॉकेट्स होते हैं, बड़े बड़े गन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं। ओके, उनके पास एयरप्लेन्स भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी होते हैं, राइट, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। सो दे हैव ऑल दिस फैसिलिटीज़ which are helpful to them. They attack the enemy from a distance. It also has its own helicopters to airlift the soldiers. तो सोल्जर्स को एयरलिफ्ट यानी वहाँ से तुरंत पिकअप कर लेने का, ठीक है, और कहीं पे ड्रॉप करने का, ये सारा उनके पास फैसिलिटी होता है हेलीकॉप्टर का। और वो एक जगह से दूसरी बैटल फील्ड में भी उनको इमरजेंसी में जाना पड़े तो वो एयरलिफ्ट करके भी अपने सैनिक है वो भेज सकते हैं वहाँ पर। ओके, आवर सोल्जर्स आर पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर एट 21,000 feet. सियाचिन इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाईएस्ट बैटल फील्ड। तो वो जहाँ पर स्नो कवर्ड रीजन है सियाचिन, ठीक है, सियाचिन बॉर्डर क्या है, सियाचिन बॉर्डर जो है वो स्नो कवर्ड रहती है, बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पर भी हमारे कंट्री के सोल्जर्स है, पोस्टेड है, ऑन ड्यूटी रहते हैं, ठीक है। तो सियाचिन बॉर्डर जो 21,000 feet अबव है, हाई है, वहाँ पर भी बैटल फील्ड है वहाँ पर, और वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर भी अपने सोल्जर्स पोस्टेड है, ऑन ड्यूटी है, राइट। सो आई विल शो यू द पिक्चर। See, this is the picture of Siachen posted soldiers holding the national flag. तो ये बॉर्डर है सियाचिन बॉर्डर, वहाँ पर अपने कंट्री की इंडियन सोल्जर्स, अपनी इंडिया के सोल्जर्स पोस्टेड है, जहाँ पर बहुत ठंड होती है, राइट, बहुत -डिग्री में टेम्परेचर होता है, बहुत ठंड होती है, और ये 21,000 feet हाई है, वहाँ पर अपने सोल्जर्स पोस्टेड है। द इंडियन एयरफोर्स IAF प्रोटेक्ट्स आवर एयर स्पेस।
अब इंडियन एयरफोर्स क्या करता है, एयर लेवल पे, एयर के में वो हमें प्रोटेक्ट करता है। तो एयरफोर्स है वो एयर स्पेस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो इट वर्क्स ऑन एयर। ओके, कैसे काम करते हैं? एयर फोर्स वर्क्स बाय चेजिंग अवे द एनिमी एयरक्राफ्ट और शूटिंग देम डाउन। ओके, तो एनिमी का अगर एयरक्राफ्ट है तो उसके पीछे वो अपने फाइटर प्लेन्स, अपने फाइटर एयरक्राफ्ट लग जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते, शूट कर देते, राइट। सो ऐसे वो ऑन एयर पे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, अपने कंट्री की जो लैंड है उसमें और उसके अराउंड बॉर्डर्स लेवल पे वो ऑन एयर भी हमें प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट होता है, एनिमी का एयरप्लेन या फाइटर प्लेन होता है, तो उसके फाइटर प्लेन को वो फॉलो करते हैं। ओके, दे चेज अवे, फॉलो करते हैं और उसको निकाल देते हैं या तो उसको शूट कर देते हैं। ड्यूरिंग अ वॉर इट कैरीज आउट स्ट्राइक इन एनिमी टेरिटरीज, it carries out strikes. It also airlift the soldier and equipments. वो soldiers, equipments कुछ भी होता है उसको एयरलिफ्ट करते हैं, उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द टैंक को भी वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो दे आर हैविंग हेलीकॉप्टर्स एंड एयरक्राफ्ट्स। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स टू डू दिस टास्क। तो ये सारा काम करने के लिए उनके पास बहुत सारी मिसाइल्स भी होती है। तो मिसाइल्स मैंने आपको समझाया कि रॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, मिसाइल क्या होती है? मिसाइल होता है रॉकेट लाइक वेपन जो हमारे गाइडेड टारगेट पर शूट करता है। ओके, इट इज़ अ रॉकेट लाइक स्मार्ट वेपन दैट कैन बी गाइडेड टू अ टारगेट। So the aircraft can follow, can attack and can destroy the enemy planes. The Indian Navy. Indian Navy protect the sea and that are the parts of Indian territory. Indian territory, इंडिया और इंडिया के अराउंड जो भी सी है, ठीक है, वाटर बॉडीज़ है, उसमें रहकर वाटर लेवल पे इंडियन नेवी हमें प्रोटेक्ट करती है। इट कैन स्ट्राइक एनिमी टारगेट्स ड्यूरिंग अ वॉर। तो वो वॉर के समय पे टारगेट रख कर अटैक कर सकती है एनिमी को। फॉर दिस इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ शिप, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट। और इसीलिए उनके पास काफ़ी अलग अलग प्रकार की शिप्स है, सबमराइन्स है। सबमरीन क्या होता है? सबमरीन होता है जो अंडर वाटर के अंदर जाकर भी चल सकती है, वैसा एक वेसल। ठीक है, सो इंडियन नेवी के पास अलग अलग प्रकार की शिप, सबमराइन और एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक है, दे आर हैविंग एयरप्लेन्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट्स ऑल्सो। व्हाट डू? दे प्रिवेंट रॉबिंग अ शिप एंड किलिंग, इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स। नेवी ऑल्सो प्रिवेंट क्राइम्स एट सी सच एज पायरेसी एंड पोचिंग। तो नेवी क्या करती है? वॉर में तो हेल्पफुल रहती है, उसके अलावा क्या करती है नेवी? नेवी प्रिवेंट्स क्राइम एट सी। तो जो भी ऑफेंस, जो भी गुनाह, क्राइम होता है सी लेवल पे, उससे भी वो प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट कैसे करते हैं? पायरेसी क्या होता है? रॉबरी। ओके, लूटिंग अ शिप, रॉबिंग अ शिप। एंड पोचिंग क्या होता है? इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एक्सेट्रा। सो इलीगल किलिंग को भी वो प्रिवेंट करते हैं, रॉबरी और लूटिंग को भी प्रिवेंट करते हैं। तो गुनाह को प्रिवेंट करते हैं, गुनाह पे नज़र रखते हैं। ठीक है, और इंडियन कोस्ट गार्ड हेल्प द नेवी नियर आवर कोस्ट। सो इंडियन कोस्ट गार्ड, जो हमने फोर्थ और यंगेस्ट आर्मी के बारे में पढ़ा, वो कौन सी है? इंडियन कोस्ट गार्ड, जो नेवी की मदद करती है। नेवी जो वाटर लेवल पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसकी हेल्पफुल रहते हैं उसको कोस्ट गार्ड। ठीक है, जो क्या करते हैं?
जो सी कोस्ट होते हैं उसके अराउंड वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं. The Indian Coast Guards, okay, the Indian Coast Guard protect our coast, okay, हमारे किनारे सारे जो होते हैं लैंड पार्ट नियर द सी, ओके, सो दैट सी बेड और कोस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं. उसके अलावा वो मरीन एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, दे स्टॉप द हार्मफुल एक्टिविटीज़, ओके, and protect the marine environment, helps the fishermen and prevents the poaching and smuggling. ये भी poaching को prevent करते हैं. poaching यानी illegal तरीके से जो लॉ में नहीं हो वैसे एनिमल्स को किल करते हो तो उनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. द कोस्ट गार्ड ऑल्सो प्रिवेंट्स स्मगलिंग. अभी स्मगलिंग क्या होता है? ठीक है, अभी इलीगल मूवमेंट of goods or of people from one country to another country. ठीक है, इलीगल मूवमेंट, एक सामान जो दूसरी कंट्री में जिसकी परमिशन नहीं है वैसा सामान, वो अगर मूवमेंट वैसे सामान की होती है, ठीक है, वैसे गुड्स की होती है जिसका कोई लीगल परमिशन नहीं होता है, जो इलीगल होता है, वैसी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट अगर होता है तो उसे स्मगलिंग कहते हैं. ठीक है, स्मगलिंग को भी प्रिवेंट करते हैं कोस्ट गार्ड्स. तो ये उनकी जो है वो वर्किंग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. द 3 older forces have their own chiefs और chiefs of staff. तो जो ओल्डर फोर्सेस है जो पहले से बनी हुई थी, ठीक है, न्यू में कौन सी है? 4th नंबर वाली इंडियन कोस्ट, ठीक है, कोस्ट गार्ड. पर जो पहले से ही जो 3 ओल्डर फोर्सेस है उनके अलग अलग चीफ है. चीफ जो उन्हें गाइड करते हैं, राइट, जो उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वैसे चीफ्स हैं. ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ. द चीफ ऑफ द आर्मी हैज़ द रैंक ऑफ जनरल. तो वो रैंकिंग के हिसाब से चीफ बने होते हैं, तो दे हैव द रैंक ऑफ जनरल. आर्मी में कौन सा रैंक होता है? जनरल. तो आर्मी के चीफ के आगे जो टाइटल लगता है ना वो जनरल होता है. द चीफ ऑफ द आर्मी हैज़ द रैंक ऑफ जनरल. द चीफ ऑफ द एयर फोर्स हैज़ द रैंक ऑफ एयर चीफ मार्शल. ठीक है, तो जो एयर फोर्स के जो चीफ होते हैं, जो हेड होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके आगे क्या लगता है? एयर चीफ मार्शल. और जो नेवी, ओके, नेवी में होते हैं उनके चीफ के आगे रैंक ऑफ एडमायरल, उनके आगे एडमायरल लगता है. ठीक है, दैट इज एडमायरल. तो सारे चीफ के आगे आगे अलग अलग टाइटल लगते हैं, अलग अलग रैंक होते हैं. ठीक है. द कोस्ट गार्ड इज कमांडेड बाय अ वाइस एडमायरल ऑफ द नेवी. अभी कोस्ट गार्ड इज कमांडेड, इज headed by a vice admiral of the navy. The president is the supreme commander of the armed forces. So the president is the supreme, is the highest commander of the armed forces. चारों के चारों armed forces के जो चीफ कमांडर है वो अपने प्रेसिडेंट है. जो चीफ हेड है, ओके, सुप्रीम हाईएस्ट हेड, वो अपने प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट का नाम क्या है आपको पता है? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री? द प्रेसिडेंट, द करंट प्रेसिडेंट, द ऑनगोइंग करंट पोस्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज रामनाथ कोविंद. ओके, रामनाथ कोविंद. सो ही इज द चीफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड forces. But as in the matter of running the country, the real job of directing the armed forces is done by the Union Minister, Defense Minister. ठीक है. So the real directions, okay, real instruction कौन देता है? Defense Minister और दूसरे Union Ministers. So your homework is to find out who is the करंट डिफेंस मिनिस्टर. ओके,
आपको फाइंड करना है, आपको पूछना है पेरेंट्स को कि अपने डिफेंस मिनिस्टर कौन है, हु इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर। टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि आर्मी होती है वो वेल ट्रेंड होती है, तो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग मिलती है उनको। सो speaking about the training part, one of the way in which one can become an Indian Armed Force officer is to join Indian National Defense Academy। ठीक है, तो आर्मी में अगर किसी को ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर किसी को आर्मी ऑफिसर बनना है, कोई भी 4 आर्म्ड फोर्सेस में से किसी एक फोर्स में अगर किसी को ऑफिसर बनना है, ठीक है, तो उसका क्या तरीका है, उसका तरीका ये है कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA को ज्वाइन करें। ठीक है, वन ऑफ द वे इन विच वन कैन बिकम इंडियन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर is to join National Defense Academy, which is located at खड़कवासा नियर पुणे। तो खड़कवासा एक प्लेस है, वहाँ पर ये डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, सो वहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12 कंप्लीट करके अप्लाई कर सकते हैं NDA में। ठीक है, NDA में अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट देने के बाद 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है। ओके, 3 years of basic training is given here and is followed by training at the Indian Military Academy, Indian Force Academy or Indian Naval Academy. The officers of the Coast Guard also trained at Indian Naval Academy. ठीक है, आर्मी के लिए हमें तो पहले NDA ज्वाइन करना पड़ता है जो खड़कवासला पुणे में है। 12th क्लास के बाद एक टेस्ट होती है, वो टेस्ट हमें टेस्ट क्लियर करने के बाद हम NDA ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर 3 years की बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हम अपने फील्ड के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से इंडियन मिलिट्री में जाना है, इंडियन एयरफोर्स में जाना है कि नेवी में जाना है कि कोस्ट गार्ड में जाना है। तो 4 जो टाइप्स है, 4 काइंड्स है, उसके हिसाब से आगे की ट्रेनिंग मिलती है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री में इन्फेंट्री आर्मी यानी कि ऑन लैंड के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। एयरफोर्स में ऑन एयर स्पेस, ऑपरेट ऑन एयर स्पेस, तो ट्रेनिंग इज गिवन अकॉर्डिंगली। नेवल एकेडमी में सी लेवल और वाटर बॉडीज़ में ऑपरेट करना होता है, तो उस हिसाब से ट्रेनिंग मिलती है। और कोस्ट गार्ड वालों को भी ट्रेन करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइड ऑफ द नेशन। ठीक है, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अवॉर्डिंग द मेडल टू कैडेट्स एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो जो चीफ है, नेवी स्टाफ के जो चीफ है, ठीक है, उनके आगे टाइटल लगता है एडमायरल। एडमायरल है वो अपने कैडेट्स यानी कि अपने जो स्टाफ है उसको मेडल लगा रहे हैं। ओके, तो इसमें रैंक और मेडल्स होते हैं। प्राइड ऑफ द नेशन, प्राइड यानी कि गर्व। तो आर्मी है वो हमारे लिए प्राइड है। ठीक है, इट इज़ द प्राइड ऑफ द नेशन, अपनी कंट्री का गर्व है, अपनी आर्मी है वो, हमें गर्व महसूस होता है अपनी आर्मी पे। ठीक है, हम अपने घरों में सेफ है। ठीक है, हमें कोई एंजाइटी, कोई टेंशन नहीं है, हम सेफ है क्योंकि आर्मी है वो कॉन्स्टेंटली हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग बाउंड्रीज पे ऑपरेट कर रही है। ठीक है, वी कैन एन्जॉय फेस्टिवल्स एंड ऑल, यू नो, वी कैन हैव फन, वी कैन स्लीप पीसफुली, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आर्मी। So we should always respect the army of the nation and be proud of the army. ठीक है, हमें
हमेशा रिस्पेक्ट करनी है आर्मी ऑफिसर्स की, सोल्जर्स की, और हमेशा हमें गर्व रखना चाहिए, गर्व होना चाहिए इन पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइड ऑफ द नेशन। द पोजीशन ऑफ अ कंट्री इन द वर्ल्ड डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट ऑन द माइट ऑफ इट्स मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, एक कंट्री की क्या पोजीशन है, ओके, हाउ इज, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ कंट्री कैन बी नोन थ्रू इट्स मिलिट्री। ओके, ऐसा कहा जाता है कि कंट्री की पोजीशन जानने के लिए वो कहीं हद तक कंट्री की पोजीशन कैसी होगी, जैसे उसके मिलिट्री की पोजीशन होगी। सो अपनी मिलिट्री जैसी होगी वैसे ही अपनी कंट्री होने वाली है, ठीक है। आवर आर्म्ड फोर्सेस आर लुक्ड अपॉन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे अच्छे में अच्छे आर्म्ड फोर्सेस है हमारे कंट्री में, ओके। आवर आर्म फोर्सेस, आवर सिस्टम इन द आर्मी, इन द मिलिट्री इज वेरी गुड, ओके, इट इज excellent. They have served the country selflessly in the times of war as well as peace. ठीक है, आर्मी जो है, आर्म्ड फोर्सेस जो है, उन्होंने हमेशा हमें सर्व किया, हमेशा हमारी सेवा की है, हमें सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। वॉर हो, कोई डेंजर हो, कोई पीस हो ना, तब भी वो लोग हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, एट द टाइम्स ऑफ वॉर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ पीस। तो दोनों तरीके से वो हमारी हेल्प करते हैं। एंड द कंट्री इज़ प्राउड ऑफ देम, इसीलिए हमें और हमारी कंट्री को उन पे गर्व है, आर्म्ड फोर्सेस पे हमें प्राउड है, ठीक है। एंड द कंट्री इज़ प्राउड ऑफ देम। वी शो दिस इन मैनी डिफरेंट वेज, जो हम अलग अलग तरीके से उन्हें दिखाते हैं, राइट। हमारी रिस्पेक्ट, हमारी जो हम उनके लिए फील करते हैं वो हम अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। और इवन गवर्नमेंट भी ये जो है वो रिकॉग्नाइज करती है, और गवर्नमेंट भी इनको मोटिवेट करती है, ठीक है। कैसे मोटिवेट करती है? उन्हें अवार्ड देकर, ब्रेवरी अवार्ड्स देकर। ब्रेवरी यानी शूरवीरता, राइट, जो बहादुरी होती है। तो ब्रेवरी अवार्ड्स के थ्रू जो भी सोल्जर्स या आर्म्ड फोर्सेस ने अपना एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया हो, ठीक है, बहुत करेज दिखाया हो, तो उनको अवार्ड मिलते हैं। कब मिलते हैं? ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि 26 जनवरी। अभी हाल ही 26 जनवरी रिपब्लिक डे था। तो ऑन रिपब्लिक डे एवरी ईयर awards are given, okay, prizes are given to the soldiers who have achieved the performance. On Republic Day, the president gives gallantry awards. Gallantry यानी कि bravery, bravery यानी कि बहादुरी, ठीक है। So every year on Republic Day, the president of the country gives gallantry bravery awards, the awards for gallantry in war, ठीक है। तो गैलेंट्री अवार्ड्स है ना, उनके भी उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द अवार्ड्स फॉर गैलेंट्री इन वॉर, यानी कि दो कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरी है गैलेंट्री अवार्ड्स इन वॉर, वॉर के टाइम में जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई है। वॉर यानी कि युद्ध, ठीक है, युद्ध के टाइम में जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई है वो, उनके लिए अवार्ड्स, ठीक है। तो उनके कौन कौन से अवार्ड्स हैं? परम वीर चक्र, परम वीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र, ठीक है। परमवीर चक्र है वो सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, उसके बाद है महावीर चक्र एंड उसके बाद वीर चक्र है। तो जिन भी सोल्जर्स ने, जिन भी आर्म्ड फोर्सेस ने वॉर के समय पे कुछ ऐसा करेजियस ब्रेवरी का काम किया हो, तो उन्हें ये अवार्ड मिलते हैं, या तो उनकी फैमिली वालों को ये अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो सोल्जर होते हैं वो काफ़ी बार देश को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है।
they sacrifice their own life for the country. Okay, and they are actually immortal. They can't be forgiven. Okay, वो भूल नहीं सकते उनके कुर्बानी को उनके वो शहीद होते हैं, ठीक है, दे आर शहीद. सो वैसे शहीद सोल्जर्स की वाइफ को या उनके पेरेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को ये अवार्ड मिलता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिसर. तो ये परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र ऐसे सोल्जर्स को मिलता है जिन्होंने वॉर के टाइम पे ब्रेवरी दिखाई हो. इट कुड बी दैट अगर जो ऑफिसर है, जो सोल्जर है, अगर वो शहीद हो गया है तो उनकी फैमिली को ये अवार्ड मिलता है, ठीक है. द अवार्ड फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग द पीस, ठीक है. तो जब अपने देश में, अपनी कंट्री में पीसफुल एक्टिविटीज़ हो रही है, पीसफुल एक्टिविटीज़ में, पीसफुल टाइम में जिन्होंने ब्रेवरी दिखाई है, ठीक है, उनको ये अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र मिलता है. द अवार्ड्स फॉर ब्रेवरी ड्यूरिंग द पीस आर अशोक चक्र ऑन द फर्स्ट पोजीशन, कीर्ति चक्र ऑन द सेकेंड एंड शौर्य चक्र ऑन द थर्ड पोजीशन. The awards are listed here in order. With the highest award coming first. ये तो मैंने समझाया कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, ठीक है. प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी. तो जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे ना, तब उन्होंने अशोक चक्र अवार्ड किया था, यानी लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है. तो प्रणब मुखर्जी गिविंग अशोक चक्र अवार्ड टू मेजर मुकुंद वारादराजन टू हिज वाइफ. तो आप देख सकते हो कि इस फोटोग्राफ में भी प्रेसिडेंट है, वो अवार्ड दे रहे सोल्जर की वाइफ को, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि सोल्जर इज नो मोर, ओके, हैज शोन द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस्ड फॉर द कंट्री, राइट. तो ये सेल्फलेस सर्विस होती है उनकी, ठीक है, ये उनकी सेल्फलेस सर्विस होती है और ब्रेवरी जो दिखाते हैं उनको अवार्ड्स मिलते हैं. ऑन आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे December 7 द नेशनल ऑनर्स द नेशन ऑनर्स द फोर्सेस. तो आर्म्ड फोर्सेस डे होता है, फ्लैग डे होता है. हर एक आर्म्ड फोर्सेस का अलग अलग फ्लैग होता है, ठीक है, अलग अलग मोटो होता है और फ्लैग भी डिफरेंट होता है. तो हर एक जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके में से जो काफ़ी लोगों को भी प्राइज़ मिलता है, उनको सम्मान मिलता है, ठीक है. फंड्स आर कलेक्टेड बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लैग्स. दिस फंड्स आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ एक्स सर्विसमैन. तो फंड्स कलेक्ट होते हैं, ठीक है, और जो फंड्स कलेक्ट होते हैं फ्लैग को डिस्ट्रीब्यूट करने से, फ्लैग्स में से जो फंड मिलता है उस फंड को यूज़ करते हैं रिटायर्ड सोल्जर्स और सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए, या तो फिर ऐसी फैमिली के लिए जिनके सन या हस्बैंड, बेटा या पति जिनके वॉर में गुजर गए हों, वैसे लोगों का भला करने के लिए ये पैसे है वो यूज़ किए जाते हैं. Okay, the last paragraph of this chapter in the Amar Jawan Jyoti at India Gate was made to honor all the soldiers who sacrificed their lives in 1971 war. ठीक है, तो 1971 में वॉर हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, सो इस वॉर में काफ़ी सोल्जर्स ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. उन्होंने बहुत ब्रेवरी दिखाई, ठीक है. वो लोग ने बहुत ही करेज के साथ पूरी सिचुएशन को हैंडल किया. वॉर में विक्ट्री भी हमारी हुई थी, बट इस वॉर में काफ़ी सोल्जर्स की डेथ हो गई, ठीक है, काफ़ी सोल्जर्स शहीद हो गए. तो उन लोग को
सम्मानित करने के लिए, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, ठीक है, टू ऑनर ऑल द सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस्ड देयर लाइफ, अमर जवान ज्योति at India Gate was made. The Prime Minister and the Chief of the Forces lay wreath at this memorial on January 26. तो रिपब्लिक डे के दिन जो अपने प्राइम मिनिस्टर है और जो ये 4 फोर्सेस के हेड है, ठीक है, तो ये हेड जो एडमायरल है, जनरल है और जो मार्शल है, ठीक है, ये सारे जाते हैं और ये जो अमर जवान ज्योति है, जहाँ पर कॉन्स्टेंटली फ्लेम होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली वहाँ पे ज्योति होती है, वो प्रगटा हुआ होता है कॉन्स्टेंटली, और वहाँ पर ऐसे 4 दूसरे भी ज्योत है वो भी जगाते हैं उस दिन पे। और व्रेथ क्या होता है आपको देख सकते हो, इन सब के हाथों में है व्रेथ। ओके, दिस इज व्रेथ विच इज कॉर्नेट, हम उसे कॉर्नेट भी कह सकते हैं, सिनोनिम इज कॉर्नेट, CORNET, कॉर्नेट, यानी कि जो फ्लावर्स है, ठीक है, फ्लावर्स को उस तरीके से सर्क्यूलर वे में अरेंज किया हुआ, एक रिंग के टाइप का बनाया हुआ, ठीक है, तो आप देख सकते हो। सो दिस आर द व्रेथ। ओके, सो हमारे प्राइम मिनिस्टर और ये जो चीफ है, ठीक है, मार्शल, एडमायरल और जनरल चीफ, वो सब जाते हैं और पुष्पांजलि देते हैं। पुष्पांजलि यानी ये जो फ्लावर वाला व्रेथ होता है उसके थ्रू वो उसमें अपना होमेज ऑनर करते हैं ऐसे जवानों के सेक्रीफाइस को। जवान यानी कि सोल्जर्स। ओके, तो ऐसे सोल्जर्स को ऑनर करने के लिए वो लोग होमेज पे करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ lay the wreath at this memorial on Republic Day on 26th January. The armed forces also pay homage at the memorial on special days. कोई स्पेशल डेज होते हैं, उस डे पर भी जो आर्म्ड फोर्सेस है, ठीक है, जो सेना है, वो सेना वहाँ पर जाती है, उसके जो चीफ होते हैं और जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं और वो श्रद्धांजलि देते हैं। होमेज यानी कि श्रद्धांजलि, वो ट्रिब्यूट जो होता है वो देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं ऑन स्पेशल ओकेशन सच एज इन्फेंट्री डे। इन्फेंट्री यानी कि जो नॉर्मल आर्मी है, ठीक है, जो लैंड पे होता है, ठीक है, सोल्जर्स हु फाइट ऑन फुट, तो जो लैंड पे जो फुट पे फाइट करते हैं, ठीक है, दैट आर्मी, हर एक आर्मी का डे होता है, ठीक है, नेशनल आर्मी डे, फिर होता है एयरफोर्स डे, तो हर एक आर्मी का एक पर्टिकुलर दिन भी होता है। तो उस दिन पे जाकर, जैसे इन्फेंट्री डे है तो उस दिन पे इन्फेंट्री आर्मी जाएंगे और होमेज पे करेंगे। Men of the 3 older forces guard the memorial round the clock and 4 flames burn in honor of the heroes. तो जो 3 हेड्स हैं, ठीक है, नेवी के, एयरफोर्स के और आर्मी के, तो तीनों हेड है वो वहाँ पर ऐसे मेमोरियल पे जाते हैं और जो 4 फ्लेम्स है वो जगाते हैं इन ऑनर ऑफ द हीरोज़, सम्मानित करते हैं जो हीरोज़ जो अमर हो गए हैं, ठीक है, एक्चुअली दे हैव लॉस्ट देयर लाइफ बट दे आर इमॉर्टल इन आवर हार्ट्स, दे विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर देयर ब्रेवरी एंड फॉर प्रोटेक्टिंग अस, तो फॉर दैट दे आर पेड होमेज। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ठीक है। और ये जो पिक है ना, ये फोटोग्राफ है वो अमर जवान ज्योति का है, जो कहाँ पर है, इंडिया गेट पे है, ठीक है। ये जो अमर जवान ज्योति है वहाँ पर एक आप देख सकते हो कि एक जो अमर जवान जो लिखा हुआ है मेमोरियल पे, ठीक है, तो ये मेमोरियल पे अमर जवान लिखा है, वहाँ पर आप एक राइफल देख सकते हो और एक सोल्जर का हेलमेट यानी कि कैप देख सकते हो,
जो ये इंडिकेट करता है कि न जाने कितने सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, और उन सारे सोल्जर्स को यहाँ पर होमेज दिया जाता है। उनके अच्छे कार्यों को, उनकी ब्रेवरी के इंसिडेंट को रिमेंबर करते हैं, वो लोग याद करते हैं और उन्हें होमेज पे करते हैं। ये व्रत होता है, ठीक है, वो व्रत भी उन्हें पुष्पांजलि भी देते हैं। ओके, व्रत के अराउंड, वो जो ज्योति है उसके अराउंड व्रत को रखते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. रीड द चैप्टर and solve the exercise, choose the correct answer, filling the blanks आपको try करना है. Okay, and if you are having any doubt, you are free to call me. Okay, feel free to call me during the time period given to you. Okay, during the call timings. Okay, bye students, take care.